Now let's start. Uh, so yesterday we were discussing one question that was taken up from the exercises part. हम इसमें कुछ queries कर रहे थे. Create table and some other related to it. Alter table किया था हमने. ये हमारा टेबल था, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल. इसमें ये हमने क्रिएट टेबल कमांड किया. इंसर्ट इनटू कमांड की, इंसर्ट ऐड करने के लिए, वैल्यूज ऐड करने के लिए. डिलीट कमांड वी हैव डन टू डिलीट सर्टेन वैल्यूज. अल्टर टेबल कमांड हमने की थी कि हम कुछ कंस्ट्रेंट्स वगैरह ऐड कर सकें. एंड देन कुछ सेलेक्ट स्टेटमेंट्स की थी. Okay, so we have done this. I write a query to display the name and job title of those employees whose employee ID is 1201. So select employee underscore name of that column employee जहाँ names जहाँ पे है, job underscore title, from name of the table was employee, where condition में हमने डाल दिया कि manager underscore ID is 1201. This is simple. Next is write the query to display the names and job titles of those employees whose manager is Amira. अब ये कैसे पता लगेगा मैनेजर अमायरा के, कैसे चेक करेंगे? या तो मैनेजर नेम वाले कॉलम में अमायरा को मैच कर लो, राइट, या वी कैन सिंपली चेक द मैनेजर आईडी ऑफ अमायरा. ये हम टेबल दोबारा देखते हैं. अब अमायरा यहाँ पे है, या तो वेयर कंडीशन में डालने के वेयर एम्प्लॉई अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अमायरा, और वी कैन ऑल्सो राइट वेयर एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू 1205. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस हम लोग उसमें लगा सकते हैं. So what I have written is select employee underscore name comma job underscore title from employee where manager ID is equal to 1205, or you can also write where name is equal to Amira. ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही उसको पर्सन को बिलोंग कर रहे हैं, एक ही रिकॉर्ड के अंदर है. So conditions you can write in this way also. Manager ID is equal to 1205 or name is equal to Amira. फाइन. बाकी कॉलम्स नहीं ले सकते हैं बिकॉज उसमें रेपिटेशन होंगी. नेम में रेपिटेशन नहीं है और मैनेजर आईडी में रेपिटेशन नहीं है, तो ये दोनों हम ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेरी इज राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड जॉब टाइटल ऑफ दोज एम्प्लॉई एज्ड बिटवीन 26 years and 30 years, बोथ इंक्लूसिव. सो जिनकी एज 26 और 30 के साथ बीच में है और 26 और 30 को इंक्लूड करना है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बिटवीन क्लॉज. So we'll write select employee underscore name comma job title from the name of the table is employee where age between 26 and 30. Age is between 26 and 30. So we'll write age between 26 and 30, right? Another way of doing is, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. I'll type here. Or this way, select employee underscore name job title from employee where age is greater than equal to 26 and age
less than equal to 30. So this is also one way of writing the same command. Fine. So ये important point is whenever between is used, between में ये होता है कि 26, 26 और 30 ये दोनों include होंगे. ठीक है. और we can write in this way, age greater than is equal to 26 and age less than is equal to 30 और between लगा दो. दोनों में से कोई भी option सही है. ठीक है. So this problem ends over here. Now let's do some more exercises. I'll open up some more questions. ये है. Now here you see the question is like this, that a railway company uses machines to sell tickets. The machine's details and daily sales information is recorded in two tables. Now we have two tables. Table one is about machine. Name of the table is machine. इसमें दो fields हैं, एक field है और एक data type है. ठीक है. तो बेसिकली मतलब हमने दो फील्ड्स बनाई, एक मशीन आईडी और स्टेशन. मशीन आईडी में कैरेक्टर्स होंगे जिनकी जो मैक्सिमम साइज है 3 होगा. स्टेशन में भी कैरेक्टर्स होंगे, मैक्सिमम साइज 30 होना चाहिए. ऐसे सेल्स टेबल है जिसमें ये 4 कॉलम्स होंगे, मशीन आईडी, डेट, टिकट सोल्ड एंड इनकम. और ये कैरेक्टर लेगा, मशीन आईडी विल टेक अप कैरेक्टर्स, डेट विल टेक डेट फॉर्मेट और टिकट्स का डेटा टाइप इंटीजर है या इंट लिख सकते हो. इनकम का decimal ways where numbers are used, but we can also put decimal values into it. Remember integer में decimal values नहीं आती हैं. अगर आपको decimal values लगानी है तो we'll write decimal data type. Decimal लिख के bracket में दो numbers लिखने होंगे. First number 8 indicates that how many integers digits we are going to use. 8 digits का number डाल सकते हैं. और 2 का मतलब है decimal के बाद 2 digits आ सकते हैं. ठीक है. तो this standard we need to set. Now the question is, अच्छा, first thing is the primary key of the table machine is machine ID. So इस table का primary key machine ID है. Records in the table sales are unlikely identified by the field machine ID and date. So यहाँ पे records को कैसे identify कर रहे हैं sales वाले table में, machine ID से और date से. Now the thing is, create the table machines and sales. Create table command लिखो. Right? So I'm writing here, create table. Name of the table, first table is machine M capital. उसके बाद पहला field है machine underscore ID. Machine underscore ID. Now what is the data type? Char 3. Char maximum size 3. और हमने यहाँ लिखा था कि machine ID जो है वो primary है, so we'll also write primary key here. Put a comma. Next column is station और ये char 30 size है इसका. Station char 30. That's it. 2 ही कॉलम है. ये आपका पहला टेबल क्रिएट हो गया. नाउ कमिंग टू सेल्स टेबल. इसके लिए भी क्रिएट टेबल कमांड लिखनी पड़ेगी. क्रिएट टेबल सेल्स एस कैपिटल. पहला कॉलम मशीन आईडी. मशीन आईडी में कैरेक्टर्स हैं और इसका साइज 3 है. Then next is date, D capital.
और इसका डेटा टाइप भी डेट है, कॉमा। नेक्स्ट इज टिकट सोल्ड, टिकट्स अंडरस्कोर सोल्ड का एस कैपिटल, और ये इंटीजर है, सो विल पुट इंट ओनली। देन इज इनकम, इनकम में डेसिमल डेटा टाइप, और डेसिमल का साइज मैक्सिमम 8 डिजिट्स, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, राइट। अब इसमें उन्होंने बोला है रिकॉर्ड्स हमने मशीन आईडी से आइडेंटिफाई करने हैं। दैट मीन्स के हमें मशीन आईडी को रेफरेंस की बनाना पड़ेगा, फॉरेन की, बिकॉज मशीन आईडी ऑलरेडी ऊपर वाले टेबल में है। सो विल राइट फॉरेन की, कौन से कॉलम को बना रहे हैं, मशीन अंडरस्कोर आईडी को, और रेफरेंसेस, REFERENCES, रेफरेंसेस किसको कर रहे हैं, ऊपर वाले टेबल को, मशीन में मशीन आईडी, तो मशीन M कैपिटल, और इसके अंदर मशीन अंडरस्कोर आईडी, राइट। सो लास्ट में इसको ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमीकोलन लगा दिया। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट टू टेबल्स, बोथ द टेबल्स आर क्रिएटेड। यहाँ पे तो सिंपल था कि मशीन आईडी प्राइमरी है, यहाँ पे मशीन आईडी को रेफरेंस में भी हमने डाल दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स machines in each section, each station. So अभी देखा जाए तो जो स्टेशन हैं वो है मशीन टेबल में, और टिकट्स कितने सोल्ड हुए वो है सेल्स टेबल्स में। तो दोनों टेबल्स में से डेटा उठाना है तो ज्वाइनिंग कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो हाउ विल यू राइट दिस क्वेरी? Select, now what we need to show, number of tickets, right? नंबर ऑफ टिकट्स का आपका कॉलम नेम है टिकट्स अंडरस्कोर सोल्ड फ्रॉम दोनों टेबल के नाम, पहले टेबल का नाम है मशीन और दूसरे टेबल का नाम है सेल्स, एंड देन वी नीड टू कंपेयर वेयर मशीन डॉट machine underscore id is equal to sales dot machine underscore id. That's it, no other condition required. So what we have written, select name of the column, tickets कितनी सोल्ड हुई, from दोनों टेबल्स के नाम, where पहले टेबल का नाम मशीन डॉट, उसमें कौन सा, यहाँ पे मशीन आईडी क्यों है, ये मशीन आईडी फर्स्ट टेबल के लिए और दूसरी मशीन आईडी सेल्स टेबल के लिए, क्योंकि ये कॉमन कॉलम है ना, इसी को हम ज्वाइनिंग में लिखते हैं हमेशा, कॉमन कॉलम। फर्स्ट टेबल नेम डॉट मशीन आईडी कॉमन कॉलम इक्वल टू सेकंड टेबल नेम डॉट कॉमन कॉलम। सो दिस विल सॉल्व द पर्पस, मशीन दोनों आईडी मैच होंगी एंड देन विल गेट ओनली द सोल्ड नंबर ऑफ टिकट्स, राइट। इन्होंने एक चीज और लिखी है, ईच स्टेशन, तो हमें स्टेशन के नाम भी देने हैं। तो स्टेशन नेम जो है वो ऊपर वाले टेबल में से है, तो वी कैन पुट हेयर select ticket sold comma station, fine. So this will solve the purpose, number of tickets और station शो हो जाएंगे। मेरे हिसाब से स्टेशन को हमें पहले लिखना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा बेटर लगता है, स्टेशन कौन सा है और टिकट सोल्ड कौन सी है, ठीक है। ओके, आई विल राइट द सेम क्वेरी इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो।
मैं इसी क्वेरी को दोबारा लिख रहा हूँ एक और तरीके से। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक कॉलम इलियास बना रहा हूँ, एज एम एज एस। तो यहाँ पे मैं एम कर दूंगा, यहाँ पे मैं एस कर दूंगा। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ राइटिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। मशीन एज एम मतलब उसका एक कॉलम, इसका उसका एक अल्टरनेटिव नेम बन गया एम, सेल्स का अल्टरनेटिव नेम एस हो गया। तो जहां मशीन था वहां एम डाल दिया, जहां सेल्स था वहां एस डाल दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, बोथ द वेज ऑफ राइटिंग आर ओके, फाइन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज write the query to find the total ticket income of the station New Delhi of each day. Total ticket income, right? Income is given here in this table, sales of the machine, of the station New Delhi. So station जो है वो ऊपर वाले टेबल में है, इनकम इधर है, तो अगेन ज्वाइनिंग कंडीशन डालनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेशन को हमने मैच करना है जहाँ पे न्यू दिल्ली है, और इनकम को हमने डिस्प्ले करना है, राइट। सो मैं वही स्टेटमेंट, सो आई राइट इनकम फ्रॉम मशीन सेल्स वेयर मशीन आईडी दिस, यहाँ तक सेम रहेगा। लास्ट में हम ऐड कर देंगे एंड स्टेशन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में न्यू दिल्ली। माइंडेड न्यू दिल्ली हमने वैसे ही लिखना है जैसा क्वेश्चन में है, और सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों लगा सकते हैं, तो ये दोनों वर्क करेंगे। तो दिस विल शो दी income column from both the tables while matching the machine ID and also checking whether the station is equal to New Delhi or not, right? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, बिकॉज एक यहाँ पे उन्होंने वर्ड लिखा है टोटल। टोटल टिकट इनकम का मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ इनकम नहीं शो करनी, उन सारी इनकम्स का सम भी चाहिए। टोटल का मतलब सम होता है ना, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सम ब्रैकेट में इनकम। ठीक है, सो इससे हमारा जो भी इनकम्स शो होंगी जो न्यू दिल्लीज में है, जिनके मतलब स्टेशन न्यू दिल्लीज में है, उन इनकम्स का वो सम शो कर देगा। ठीक है। That's it. Next query is write a query to find the total number of tickets sold by the machine where machine ID is this till date. यहाँ पे दो चीजें हैं, पहले तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकालना है। टिकट सोल्ड कॉलम में हमारे पास टिकट्स होंगी कितनी सोल्ड हुई हैं, राइट। अब दूसरी चीज यहाँ पे है, कंडीशन देनी है कि मशीन आईडी 122 हो। मशीन आईडी जो 122 है, सिर्फ उसी की हमें टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकालनी है। एंड थर्ड थिंग इज टिल डेट, आज की डेट तक के। ठीक है, तो यहाँ आएगा सेलेक्ट सम ऑफ tickets sold, tickets underscore sold, tickets underscore sold from these two tables and where station is equal to New Delhi, oh sorry किधर पहुंच गए,
where and machine अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू 122। एक कंडीशन ये हो गई, और एक हमने और कंडीशन देनी है, तो एंड डेट कॉलम जो है वो, डेट कॉलम का नाम डेट ही है, डी कैपिटल है, एंड डेट लेस देन equal to, what is the date today? Today's date is 24 slash 04 slash 2020। Remember, whenever you're giving date, पहले days आएंगे दो, फिर दो letters month के लिए, दो चार letters years के लिए, short में नहीं लिख सकते। So this will solve the purpose. Now what we are going to get कि दोनों tables match होंगे, उसमें से हम सिर्फ वो वाला कॉलम रोज उठाएंगे जहां मशीन आईडी 122 है, ठीक है, उनकी टिकट्स का सम हो जाएगा, और एक और चीज चेक करेंगे कि उनमें से वही वैल्यू लेंगे जिनमें डेट जो है आज की डेट से पहले की है, ठीक है। ऑल्दो दैट्स इट। सो ये कंडीशन भी आ गई, डेट वाली भी, मशीन आईडी भी हमने चेक कर ली, और हमने दोनों टेबल्स को मैच भी कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया, और टिकट्स का सम निकाल लिया। फाइन, क्लियर दिस थिंग? ओके, क्लियर दिस थिंग, समझ आया? चलो, वी स्टिल हैव 7-8 मिनट्स, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। So now I am going to show you last year's question paper। हम उसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। So this is the sample paper sent by CBSE for the session 2019-20, जो मतलब पिछले सेशन का था, 12th ग्रेड का। इसमें सी the division is like this, that employability skills 10 नंबर की, सब्जेक्ट स्किल्स 40 मार्क्स की। इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क के होंगे। इनफैक्ट यू विल गेट 12 क्वेश्चंस, 12 में से 10 करने हैं, इंटरनल चॉइस होगी, और 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे। फिर 5 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 7, जो 2 मार्क्स के होंगे। 5 क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम 7, एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 7, ये भी इंटरनल चॉइसेस हैं सब में। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चंस करने हैं 5 क्वेश्चंस में से, और दीज विल बी 5 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। सो ऑल क्वेश्चंस आर, ऑल पार्ट्स आर कंपल्सरी। ये जो पोर्शन है इसमें कॉम्प्लेक्स इंटेंसिटी, थोड़ा लैंग्वेज वाला पार्ट है, ये शुरू में हम लोग करेंगे, इसके बाद करेंगे। वी हैव स्टार्टेड विद द कंप्यूटर बेस्ड थिंग्स। ये मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, ये पॉइंट्स सारे वहीं से आए हैं। विल स्ट्रेट अवे कम टू, हाँ, यहाँ से देखते हैं, ये हमारे कंटेंट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है, डिफाइन डेटा रिडंडेंसी, 1 मार्क क्वेश्चन है। रिडंडेंसी का मतलब क्या है? डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। सेम इंफॉर्मेशन is stored in more than one file, which result in wastage of space. This is called as data redundancy, where one particular data is present at multiple locations, उसको हम डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। और DBMS में ये सारी रिडंडेंसी की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, राइट। DBMS doesn't allow us to store one value at 2 locations, बिकॉज उसमें प्राइमरी की वाला कंसेप्ट आ जाता है। ये क्वेश्चन है कंस्ट्रेंट का। कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट विद इन अ रेंज।
रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज, वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करना, एक रेंज के अंदर वो चेक कंस्टेंट में डालते हैं, सिंपली राइट चेक, उसके बाद कोई भी कॉलम नेम ग्रेटर देन दिस, तो वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करेगा, उसको रेंज डिफाइन करेगा। ठीक है, ये क्रिएट टेबल के साथ आता है चेक कंस्ट्रेंट। किसी जैसे हमने प्राइमरी की किया है अभी, उसी प्राइमरी की जगह पे वी कैन राइट डिफॉल्ट ऑल्सो, वी कैन राइट चेक ऑल्सो। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी हम करेंगे आगे। दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द बेस टेबल डेफिनेशन। टेबल डेफिनेशन जहां भी आए वहां पे क्या आएगा, अल्टर टेबल कमांड। टेबल की डेफिनेशन को चेंज करना मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना। उसमें क्या आता है, कॉलम्स क्रिएट करने, कॉलम्स रिमूव करने, या एट्रीब्यूट्स को चेंज करना, एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना। ठीक है, ये सारा काम अल्टर टेबल में होता है। ठीक है, क्रिएट टेबल इज यूज टू क्रिएट ए टेबल। इसमें बेस डेफिनेशन चेंज नहीं की जा सकती। अपडेट में वैल्यूज को अपडेट करते हैं हम, और अल्टर टेबल में स्ट्रक्चर को अपडेट करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई टेबल कोई कमांड नहीं है, ये गलत लिखी हुई है। Then is dash a special method that every Java application has. Java we haven't started. Suffix ये भी Java है, ये भी Java है. E-governance we have not done. इसके बाद हमारा, हाँ ये आ गया. Illustrate any two DML commands with the help of examples. DML मतलब Data Manipulation Language Commands, जिसमें हम डेटा को अल्टर करना हो, डेटा को ऐड करना हो, या उसको डिलीट करना हो, वो कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में इंसर्ट इनटू कमांड से डेटा ऐड किया, तो दिस इज वन एग्जांपल। कोई एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें एक रो ऐड की, तो ये दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डीएमएल कमांड। सेकंड इज डिलीट, तो डिलीट कमांड कैन रिमूव द डेटा फ्रॉम द टेबल। तो डिलीट का कोई एक एग्जांपल दे दिया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर 101, राइट। यू कैन राइट एनी। इसमें अपडेट कमांड का भी आप डाल सकते हो, डिलीट का हो गया, इंसर्ट इनटू हो गया, राइट। सेलेक्ट स्टेटमेंट्स डाल सकते हो, ये सब डीएमएल कमांड्स हैं, राइट। सो लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन। लास्ट, लिस्ट 4 एडवांटेजेस। रिडक्शन इन रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी कम हो जाएगी। इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हो गई। अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, सिक्योरिटी इम्प्रूव हो गई, और चीज़ें यूज़र फ्रेंडली होगी। ये सारी हैं एडवांटेजेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की, राइट। दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। सो आई एंड अप हियर नाउ बिकॉज टाइम इज रनिंग। हमारे पास हार्डली 1.5 मिनट्स बचे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।